dimension. Motion in two dimension or motion in a plane. So far we have done motion in 1D. जब तुमने देखा था कि only one dimension is required to completely locate a point which is in motion. तो 1D में वन डायमेंशन मोशन में या तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था ऐसे, या पार्टिकली अप जा रहा था, डाउनवर्ड आ रहा था, है ना. तो ओनली वन डायमेंशन वाज रिक्वायर्ड. जैसे कि मान लो ये ओरिजिन है, किसी किसी भी मोमेंट पे अगर मैं पार्टिकल को पता करना है तो ओनली वन डायमेंशन इज रिक्वायर्ड, एक्स. सिमिलरली in motion to gravity also only one dimension was required to locate the position of the particle. लेकिन देर सर्टेन मोशंस, जैसे कि सर्कुलर मोशन हो गया. मान लो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, when you throw an object like this. सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो है दीज आर एन एग्जांपल ऑफ. या कोई मान लो फ्लोर पे कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ एन इंसेक्ट. तो जब क्रॉल करेगा तो टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा, है ना. इट वोंट बी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ. तो अगर कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है फ्लोर पे विच इज हॉरिजॉन्टल कंप्लीटली, so that is also example of motion in two dimension. Now why we do we call it motion in two dimension? क्योंकि हमारे एक्स और वाई दोनों एक्सेस यूज हो रहे हैं. Right. तो इस सिचुएशन में अगर पार्टिकल को लोकेट करना है, मूविंग पॉइंट को लोकेट करना है, तो वी नीड एक्स ऑल्सो, वी नीड वाई ऑल्सो. किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर आई नीड टू कोऑर्डिनेट्स. आई नीड एक्स ऑल्सो एंड वाई ऑल्सो. यहाँ पे भी at any point of time to locate the point I need two coordinates. Here also at any point of time I need two coordinates. So that is why this is called motion in two dimension. So motion in two dimension में at least I mean exactly two coordinates or two dimensions required to locate the position of moving particle. लिख लो. If a particle is in motion in two dimension, if a particle is under motion in two dimension, then
two coordinates, then two coordinates or two dimensions, then two coordinates or two dimensions are required. Two dimensions or two coordinates are required to locate the position of the particle. पहले मोशन टू डायमेंशन लिख लो तुम भी. In motion in two dimension लिखो. In motion in two dimension, two coordinates or two dimensions, two coordinates or two dimensions are required to locate position of a particle. To locate or describe the position of a moving particle. एग्जाम्पल हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, motion of an insect on the floor, a particle, moving particle. बना लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन का तुमने एग्जांपल देखा होगा. व्हेन यू थ्रो समथिंग इन एयर लाइक प्लेइंग फुटबॉल, व्हेन यू हिट अ बॉल इन क्रिकेट, तो दिस बेसिकली टेक्स द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. सिमिलरली अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, जब फुटबॉल को हिट कर देना, फुटबॉल का पाथ भी इज लाइक दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल. अगेन इट्स a motion in two dimension, and the players are moving, running on the field. So when they're running on the field, they're not moving in a straight line. They are moving randomly here and there. So that is also an example of motion in two dimension. मोशन टू डायमेंशन के अलावा मोशन 3D भी होता है वैसा. जैसे कि सपोज कोई इंसेक्ट एक स्फीयर पे क्रॉल कर रहा है या काइट फ्लाई कर रही है. तो अगर काइट फ्लाई कर रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, जेड कोऑर्डिनेट भी चाहिए. दैट विल बी मोशन इन थ्री डायमेंशन. सो दैट इज नॉट इन योर सिलेबस अभी, but we can have motion 3D also. Flying of a kite, flying of an aircraft or a plane, or insect crawling on a sphere. लिख लो motion 3D का examples. If three dimensions or three coordinates, if three dimensions or three coordinates are required, if three dimensions or three coordinates are required to locate the position of a particle, to locate the position of a moving particle, it is called motion in three dimension. It's called motion in three dimension.
Examples: flying of a kite, insect crawling on a sphere. The value motion 3D. अब मोशन 2D में क्या होगा कि विल बी यूजिंग वेक्टर्स अ लॉट. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस हमें वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा. Vectors. So as you know, a vector is a physical quantity which has magnitude and direction both. है ना? लिख लो definition of a vector. Vector is a physical quantity. Vector is a physical quantity which has magnitude as well as direction. It also, आगे लिखो, it also obeys laws of vector addition. It also obeys laws of vector addition. तो नॉर्मल लॉ ऑफ एल्जेब्रा होते हैं ना, वो इसमें अप्लाई नहीं होते. नॉर्म इन एल्जेब्रा 2 + 2 विल बी ऑलवेज 4, बट इन वेक्टर एल्जेब्रा 2 + 2 could be 0 also. So laws of vector algebra, they are basically different from normal laws of algebra. तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं. मान लो a person is moving towards east by say 12 meter, है ना, and then he moves 5 meter towards north. So if I ask you what is displacement, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा 12 + 5. So displacement is a vector quantity. Because it has a direction also, I need to tell you that the displacement of the particle is 5 square plus 12 square root, that is 13. And you need to tell you the direction also. हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं. tan थीटा कैसे निकालोगे? Perpendicular by base. So an angle theta with the east. So वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी देना होता है. सो वेक्टर इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय, जिसे मैंने बनाया है, ये लाइन सेगमेंट है. इट इज सिंपली अ लाइन सेगमेंट. तो वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. व्हेन यू पुट एन एरो ऑन द टिप, इट इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. ये है टेल, ये इसका टिप. बी इज टिप और हेड, एंड ए इज टेल. लिखो, a vector is represented by a vector is represented by a directed line segment. A vector is represented by a directed line segment whose length is proportional to the magnitude
whose length is proportional to the length of whose length is proportional to the magnitude of the vector and direction is the same as, क्या हो गया सुन, and direction is the same as the vector. The magnitude of the physical quantity and direction is the same as that of the physical quantity. तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट लाइक दिस, जिसमें एरो लगेगा. इसकी लेंथ उस वेक्टर के उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल हो गई. जैसे कि मेरे को 12 मीटर का वेक्टर बनाना है तो मैं नोटबुक में 12 मीटर तो ड्रॉ नहीं कर सकता. तो मे बी आई कैन ड्रॉ अ वेक्टर लाइन ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर कर लूंगा. या तो दूसरा वेक्टर मेरे को 5 मीटर दिखाना है तो आई शो इट बाय अ लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा. तो जब भी किसी वेक्टर को शो करना होगा तो विल शो इट बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. एंड दैट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होगा, विल हैव एन एरो ऑन द टिप जिसको हेड बोलेंगे. दूसरा पार्ट होगा टेल. इसकी जो लेंथ है, दिस लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी. जैसे कोई फोर्स है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है तो आई कैन शो इट बाय एन एरो लाइक दिस बाय वेक्टर विच इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. लेकिन अगर कोई दूसरा फोर्स है जो कि 25 न्यूटन है इसके ऑपोजिट, तो उसको मैं कैसे शो करूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंथ उसकी आधी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. तो एक लाइन सेगमेंट है जिसके हमने एरो लगा दिया. So vector is directed line segment. अब हम आगे बढ़ते हैं. टाइप, इसी में एक और चीज देख लो. जैसे ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, या तो ए बी लिख के उसके ऊपर एरो बना दो, या उसको ऐसे भी ए बी बार भी लिख सकते हो, या उसको सिंपली किसी और लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस ऑल्सो. तो ए बी वेक्टर का मतलब हुआ ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, टेल, एंड बी इज इट्स टिप और हेड. So when you represent a vector, या तो उसको कुछ टेल को मार्क कर लो पी, टिप को मार्क कर लो क्यू तो पी क्यू हो जाएगा. सिंपली अ सिंगल लेटर ए बी सी टी जो भी तुम्हें लिखना है वो तुम कर सकते हो. You can put a bar also or you can put an arrow also. Type of vectors. Co-initial vectors. हम्म. हाँ, पहले वेक्टर करेंगे फिर उसके बाद वो कर लेंगे. इसी उसी का पार्ट है ये. देखो, इससे पहले हमने थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया था मोशन 2 डायमेंशन में, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. मतलब 2 डायमेंशन मोशन में 2 डायमेंशन रिक्वायर होती हैं. चाहो तो इसको लिख लो, रिकॉर्डिंग देखना ठीक है.
गंगेश, सब ठीक है? यस सर। मम्मी ठीक है अब? हाँ सर। हो गया ऑपरेशन? हाँ सर, मम्मी के अभी मतलब चल रहा है। अच्छा सर अच्छा। ऑपरेशन को अभी डॉक्टर ने 1 महीने के लिए डिले करा, कह रहे हैं कि अभी कि पहले 1 महीने रिकवरी देख अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। लेते को हैं। इनिशियल वेक्टर्स, को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्ट। लिखो उसकी डेफिनेशन। वेक्टर्स, वेक्टर्स विच स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, vectors which start from the same point, or the vectors which have their tails at one common point, or vectors which have their tails at one common point, vectors which have their tails at one common point are called co-initial vectors. Co-initial vectors. तो एज द नेम सजेस्ट, को इनिशियल मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स, जैसे कि ये है, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया, ये सारे के सारे वेक्टर को इनिशियल कहलाएंगे। वाई को इनिशियल? बिकॉज दे हैव देयर टेल्स एट वन कॉमन पॉइंट, है ना। वो वेक्टर में क्या होता है, एक होता है टेल, दूसरा होता है टिप। जहाँ से वेक्टर शुरू होता है उसको टेल बोलते हैं, जहाँ एंड होता है उसको टिप या हेड बोलते हैं। सेम पॉइंट पर। यस, सो सारे के सारे दीज वेक्टर्स ए बी सी डी ई एज शोन इन द डायग्राम आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। डायग्राम बना लो, डायग्राम भी बनाओ। सो दीज आर, हो जाएगा 3 क्लास, 3 4 मैक्सिमम क्लास। कब है टेस्ट तुम्हारा? मोशन 1D 2D दोनों आ रहा है? अच्छा ठीक है। सर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और रे में यही डिफरेंस है कि रे एंड नहीं होती और जैसे ये ये है end लाइन सेगमेंट। लाइन तो होती है जिसका कोई एंड या बिगनिंग नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाती है, इनफाइनाइट से शुरू होती है, ये है लाइन। उसका थोड़ा सा पार्ट ये है, इसको बोलते हैं लाइन। उसका थोड़ा सा पार्ट काट दिया तो बन जाएगा लाइन सेगमेंट। उस पर एरो लगा दिया तो लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उसको हमने डायरेक्शन दे दी। तो जिस डायरेक्शन में एरो लगाया वो उसका डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट इज को टर्मिनस। को टर्मिनस वेक्टर्स। सो व्हाट आर को टर्मिनस वेक्टर्स? टर्मिनस का मतलब तुम समझते हो, को मतलब सेम, को मीन सेम, टर्मिनस मतलब जहाँ पे वो एंड कर रहे हैं। वेक्टर्स, लिखो वेक्टर्स विच टर्मिनेट्स, वेक्टर्स विच टर्मिनेट एट वन कॉमन पॉइंट, वेक्टर्स विच टर्मिनेट एट वन कॉमन पॉइंट, और वेक्टर्स whose tip is at one common point are called coterminous vectors, are called coterminous vectors। तो जैसे कि ये सारे के सारे वेक्टर जो मैं बना रहा हूँ ये कहलाएंगे कोटर्मिनस। इनकी लेंथ, इनकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इनका जो हेड है, जो टिप है, वो एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। So all these vectors which I have drawn, they are coterminous because they are terminating at one common point. Vectors which terminate at one common point are coterminous। ठीक है।
नेक्स्ट लिखो कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर दो एल आएंगे ना। कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स which are parallel to a common line, vectors which are parallel to a common line, vectors which are parallel to a common line are called collinear vectors. जैसे कि मान लो एक लाइन है, कॉमन लाइन, ये वेक्टर इसके पैरेलल है, ये वेक्टर भी इसके पैरेलल है ना, इस लाइन के पैरेलल। लाइन का तो डायरेक्शन होता नहीं है, लाइन का कोई डायरेक्शन थोड़ी है। ये भी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, ये वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है। तो ए बी सी डी ऑल आर कोलिनियर। Vectors which are parallel to a common line, vectors which are parallel to a common line are called collinear vectors. तो as you notice, B और C का डायरेक्शन ऑपोजिट है, फिर भी दे आर कोलिनियर बिकॉज दे आर पैरेलल टू ए कॉमन लाइन। कोई लाइन का कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता। Vectors which are parallel to a common line are said to be collinear vectors. थ्योरी में आएगा ये, एमसीक्यू में भी आ सकता है। लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स क्या होंगे? हाँ लिखो, वेक्टर्स विच हैव, वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शंस आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शंस आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। All these are like vectors. Can I say that all collinear vectors are like vectors? Ananya? All collinear vectors are like vectors. क्योंकि इनके पास सेम डायरेक्शन नहीं होती कोलिनियर वेक्टर्स में। हाँ, लेकिन can I say that all like vectors are collinear? All like vectors are collinear. यस सर, क्योंकि उसके सब बाद पैरेलल होती है। all like vectors are collinear. नींद में है तुम। All like vectors are collinear. All collinear are not like, but all like are collinear vectors. लिख लो, all like vectors are collinear, but not vice versa. All like vectors are collinear, but not vice versa.
negative of a vector. So suppose there's a vector which is A, or you can also call it AB. तो उसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा. So if we have vector A, its negative would have opposite direction. तो अगर ए बी वेक्टर ए के बराबर है, सो बी माइनस ए बी वेक्टर क्या होगा? माइनस ए बी वुड बी बी ए, उल्टा हो जाएगा. ए मतलब टिप और टेल इंटरचेंज हो गए. तो अगर हमने किसी वेक्टर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा. तो दैट इज ऑपोजिट ऑफ अ वेक्टर और नेगेटिव ऑफ वेक्टर. यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट वेक्टर, unit vector has unit magnitude, unit vector has unit magnitude and the same direction as that of the given vector. Same direction as that of the given vector. तो मान लो कोई वेक्टर ए है, हमें दे रखा है, उसका मुझे यूनिट वेक्टर बताना है. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. ए कैप, उसके ऊपर कैप लगा दो, टोपी पहना दो. ठीक है, एनी वेक्टर, उसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका कैप लगा दो. तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए वुड बी ऑफ यूनिट लेंथ एंड इन द सेम डायरेक्शन. तो ए कैप कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर को यू डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. देखो वेक्टर ए में दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है उसका, लेंथ, दूसरा उसका डायरेक्शन. तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा. मतलब यूनिट वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी होती है? इफ आई फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर विल बी ऑलवेज 1. लेंथ इज 1. अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर होगा. डायरेक्शन सेम होगी. किसी भी वेक्टर के पैरेलल अगर तुमने 1 सेंटीमीटर लेंथ का वेक्टर बना दिया वो कहलाएगा उसका यूनिट वेक्टर. किसी भी वेक्टर के पैरेलल अगर हमने 1 सेंटीमीटर लेंथ का वेक्टर बनाया वो कहलाएगा उसका यूनिट वेक्टर. हाँ, वेक्टर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. इफ यू डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड तो क्या बचेगा? सिर्फ डायरेक्शन तो बचेगी, लेंथ तो 1 हो जाएगी. भाई इसका मैग सपोज कोई वेक्टर है, पहले एक चीज समझो कि तीन फेमस जो बार बार यूज करने वाले हैं यूनिट वेक्टर होंगे along x, y and z axis are basically I cap, j cap and k cap. I cap क्या है? यूनिट वेक्टर along x axis. j cap unit vector along y axis. K cap is a unit vector along z axis. So these are three popular unit vectors. मान लो कोई वेक्टर OA है, ठीक है, OA वेक्टर है along positive x axis जिसका लेंथ है 4 यूनिट्स. तो तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 4 इंटू आई कैप. इमेजिन करो कोई वेक्टर है जिसका लेंथ है 4 यूनिट्स.
तो अगर मैं सिर्फ 4 लिखूंगा तो उससे थोड़ी पता लगेगा क्या है ये। आई नीड टू गिव द डायरेक्शन ऑल्सो। डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आई मल्टीप्लाई बाय अ यूनिट वेक्टर। तो 4 आई कैप का मतलब हुआ अ वेक्टर ऑफ लेंथ 4 यूनिट्स अलोंग, यस यहाँ लिख लो इसके आगे, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड और लेंथ 4 यूनिट्स along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसमें दो चीजें आ गई। इफ somebody आस्क कि ओए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ए ओए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ओए मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 यूनिट्स। ओए का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस। तो अगर मैं ओए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलना चाहिए, ए कैप। देखो क्या आता है, ओए वेक्टर कितना है 4 आई कैप, ओए मैग्नीट्यूड कितना है 4, 4 से 4 कट गया, आई कैप आ गया, मिल गया यूनिट वेक्टर। बट जरूरी थोड़ी कि वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो, कहीं और भी हो सकता है। हाँ इसलिए हमने ए कैप ले लिया जनरल करके। इफ आई आस्क यू टेल मी ए वेक्टर ओ बी ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन, बता रहा हूँ कौन सा होगा ये। ओ बी कोई वेक्टर है जिसका लेंथ है 10 यूनिट और ये है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो क्या कैसे बनाओगे इसको। तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होता है, के। तो नेगेटिव में कौन सा होगा, माइनस हो जाएगा। तो ओ बी वेक्टर हो जाएगा -10 के कैप। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली इज अ डायरेक्शन ओनली, यूनिट वेक्टर टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस और मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, इट सिंपली गिव्स यू डायरेक्शन। एक बार इसको गो थ्रू कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। इसका अगर मुझे सपोज ओ बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब आई नीड टू फाइंड ओ बी कैप, तो ओ बी कैप वुड बी ओ बी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ओ बी वेक्टर कितना है हमारे पास, -10 के कैप, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका 10, तो आंसर जाएगा -k कैप। एंड करेक्टली बिकॉज नेगेटिव जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमेशा माइनस आएगा, -k कैप आएगा। मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट दे दिया इसका, मोशन प्लेन का दिया था ना शायद। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है सबट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है कि सिंपली ऐड कर दिया नंबर्स को, नेगेटिव नंबर है उसको माइनस कर दिया। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन।
पे डेरिवेशन भी आएगा और न्यूमेरिकल भी आएंगे. The first law is parallelogram. कैसे हो गया तुम्हारा? कितने क्वेश्चन करे? कम है. ना मान लो दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, ठीक है. सपोज फर्स्ट वेक्टर इज दिस एंड सेकंड वेक्टर इज दिस. प्रैक्टिकल सिचुएशन में बताता हूँ. सपोज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट से बाय 12 मीटर. देन ही मूव्स नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट का मतलब 45 डिग्री हो गया ना, से बाय 5 मीटर. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट. तो दो वेक्टर हैं जिनको हमें ऐड करना है. तो अकॉर्डिंग टू ये इसका डेरिवेशन भी आएगा 3 मार्क का. तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट लॉ इज पैरेललोग्राम लॉ. पहले समझ लेते हैं. जिन दो वेक्टर को तुम्हें ऐड करना है, तो व्हाट यू डू इज यू ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर. उसके टिप पे सेकंड वेक्टर का टेल रखो. प्लेस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर ऑन द टिप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड देन प्लेस द tail of the second vector on the tip of the first vector. Then you obtain their sum or the resultant by joining the tail of the first vector to the tip of the second. The resultant or the sum says C. It is obtained by joining the tail of the first vector to the tip of the second vector. And this is law of parallelogram of addition of vectors. पहले ये वाला डायग्राम बनाओ, फिर ये वाला डायग्राम बना लो, फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे. इसका स्टेटमेंट लिखो. अकॉर्डिंग टू parallelogram law, according to parallelogram law of vector addition, tail of the second vector is placed tail of the second vector is placed on the tip of the first vector, on the tip of the first vector. Then their resultant is obtained by joining the tail of the first vector to the tip of the second vector. The resultant is obtained by joining the tail of the first vector to the tip of the second vector.
ठीक है। अब इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे भाई, रिजल्टेंट तो आ गया, तो उसका क्या डायरेक्शन है और उसका क्या रिजल्टेंट है। बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि जब भी दो वेक्टर्स होंगे तो उनके बीच की डायरेक्शंस या उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो समझ लेते हैं। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, एंड आई वांट टू नो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ए और बी के बीच का एंगल ये वाला लोगे या फिर ये वाला लोगे। दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा वाला लिया जाएगा, सिंगल सिंगल वाला डबल वाला। हम्म, डबल वाला। See, the angle between two vectors is always the one at which they are either converging or diverging. इस एरो को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे आ गया ये, या इस एरो को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं। ठीक है, तो जिस जहाँ पे या तो वो कन्वर्ज हो रहे हैं या डाइवर्ज होंगे, वो वाला एंगल लिया जाएगा। ठीक है, तो सी, इस पॉइंट से एक वेक्टर ये जा रहा है ए, दूसरा वेक्टर बी ये जा रहा है, तो दिस इज द वन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, ये वाला यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, तो ये वाला हो गया, सेम हो गया ना। तो जहां पे दो वेक्टर कन्वर्ज होंगे या डाइवर्ज होंगे, दैट एंगल विल बी कंसिडर्ड एज। कैसे कन्वर्ज हो रहे हैं, ये यहाँ पे आ रहा है, ये इधर जा रहा है, कन्वर्ज कैसे मानोगे। कन्वर्ज का मतलब दोनों एरो सेम पॉइंट पे आना चाहिए। जैसे ये और ये कन्वर्ज हो रहे हैं, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, या फिर दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, ये भी और ये भी। जैसे यहाँ पे इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बताओ कौन सा होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कौन सा माना जाएगा, ये वाला या ये वाला। हम्म, ये वाला एंगल होगा, बिकॉज ए ये है, बी ये है, तो ये वाला एंगल होगा थीटा। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज दैट वन एट विच दे कन्वर्ज और डाइवर्ज। लिख लो साइड में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is that angle at which two vectors either converge, at which two vectors either converge or diverge. Two vectors converge, either converge or diverge. अब मैं इसी डायग्राम को दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ बड़ा करके। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये सी का मैग्नीट्यूड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ए बी सी एट कंस्ट्रक्शन, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, दिस पॉइंट इज डी। इतना डायग्राम बनाओ। सेम डायग्राम में हमने ए बी को प्रोड्यूस कर दिया और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। व्हाट इज थीटा, नहीं नहीं, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। दिस इज फाई। व्हाट इज फाई, एंगल ऑफ द रिजल्टेंट
विद वेक्टर ए। रिजल्टेंट वेक्टर ए से जो एंगल बना रहा है वो फाई है। बिकॉज जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसका हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना, कि वो किस डायरेक्शन में है। अब मुझे एक बात बताओ, जो राइट ट्रायंगल बी सी डी है उसमें साइन थीटा कितना है? हम्म। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। हाँ। सो सी डी बाय बी सी, और सी डी बाय बी सी कितना है? बी मैग्नीट्यूड है ना। बी सी तो बी मैग्नीट्यूड है ना। तो यहाँ से सी डी आ जाएगा, सी डी आएगा बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। सिमिलरली सेम ट्रायंगल में टेल मी cos थीटा ऑल्सो। cos थीटा जाएगा बेस बी डी बाय हाइपोटेन्यूज बी सी। बट व्हाट इज बी सी? बी सी इज बी का मैग्नीट्यूड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बी डी मिल जाएगा। बी डी इज बी cos थीटा। मैं तुम्हें एक रिजल्ट बता देता हूँ, हमेशा काम आएगा ये बहुत ज्यादा। जब भी कोई राइट ट्रायंगल होगा और उसमें तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता होगा, ठीक है। इन ए राइट ट्रायंगल इफ यू नो हाइपोटेन्यूज एन एंगल थीटा, तो उस राइट ट्रायंगल का बेस हमेशा होगा एच कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर हमेशा होगा एच साइन थीटा। ये रिजल्ट याद कर लेना, साइड में नोट करके लिख लो। इन एनी राइट ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज एच, एंगल थीटा, बेस हमेशा एच कॉस थीटा होगा और परपेंडिकुलर हमेशा एच साइन थीटा होगा। बेस विल बी ऑलवेज एच cos थीटा, perpendicular would be h sin theta। जैसे मान लो एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है तुम्हें 10√3, ठीक है, और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द बेस, बेस कितना होगा बताना इसका मुझे। यस, बेस वुड बी 10√3 cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2। 5√3 आ गया बेस। इस ट्रायंगल का अगर तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना होता तो क्या होता? 10√3 10 √3 साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये आएगा 15। परपेंडिकुलर 15 आ गया और वो 5√3 आ गया। इसी को हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते थे। जैसे अब जरा यहाँ पे नोटिस करो, ये राइट ट्रायंगल है अक्षिता, ये राइट ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है? बी। ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। देखो तुम्हारा सी डी कितना आ रहा था? वही आ रहा था। तो आई कुड हैव डायरेक्टली रिटन दिस। सिमिलरली बी डी क्या आएगा? बेस कितना आएगा? बी डी आएगा हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा, तो बेस आ गया। तो वी कुड हैव डायरेक्टली रिटन ऑल्सो। यहां तक समझ में आ गया सबको? अनन्या, गंगेश, ये डेरिवेशन आएगा 3 मार्क का। हाँ, जो पहले वो यस। बनेगा, दो वेक्टर बना के रिजल्टेंट, फिर दूसरा डायग्राम ये बनेगा, और फिर स्टेटमेंट, और ये सारा लिखोगे, 3 मार्क का आएगा। अब बड़ा राइट ट्रायंगल देखो, सबसे बड़ा राइट ट्रायंगल कौन सा है? ए
डी सी, ए डी सी में पाइथागोरस लगाओ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए डी कितना है? ए बी प्लस बी डी। इतना एक बार लिख लो। बड़ा वाला राइट ट्रायंगल उधर जो लिखा है मैंने, बड़ा राइट ट्रायंगल है ना एडीसी, उसमें पाइथागोरस लगा दिया इस वाले में, इसमें दिस स्क्वायर को दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसमें सारा वो लिखो ना, बी कॉस थीटा दिस बी साइन थीटा। नहीं तो अलग साइड में लिखना, ये अलग है, ये यहाँ इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द थिंग, समझाने के लिए लिखा, इसमें बना दो बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, कॉस बी साइन। इसमें तुम पाइथागोरस लगा रहे हो। नहीं नहीं, ब्रैकेट नहीं खोल रहे। अब जरा देखो, एसी तो हमारा कितना था? एसी तो बेसिकली सी था ना, सी मॉड का स्क्वायर लिख देता हूं मैं। ए बी कितना है? ए बी इज बेसिकली मॉड ए, है ना? ए बी इज मॉड ए। बी डी कितना निकाला था हमने? बी मॉड कॉस थीटा। और सी डी कितना था? मॉड बी साइन थीटा। ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है ना? तो वी हैव यूज्ड ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहां तक देखो, ठीक है? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी जो लास्ट दो टर्म है उसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, एंड यू नो दिस आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। यू कैन यूज दैट। यहां से बी मॉड कॉमन ले लिया, ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तुम अगर चाहो तो मॉड हटा के सिंपली ए और बी भी लिख सकते हो, तो कुछ टीचर सन की होते हैं, मार्क्स काट लेते हैं, इसलिए मैंने वो अवॉइड किया था। एंड में चाहो तो लिख लो। तो जब भी हमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। C is mod of the resultant. C is also, हाँ रिजल्टेंट। हाँ, अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें डायरेक्शन भी बतानी है, थोड़ा सा पार्ट है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे बताओगे? बोरिंग था बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने तो मॉड भी हटा हटा दिया। तुम चाहो तो लिख लेना, बट यू कैन पुट मॉड ऑल्सो। सी जो था वो क्या था? ए प्लस बी का मॉड था ना। तो दो वेक्टर अगर हैं तो उनके सम का मॉड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। एरिया नहीं है, रिजल्टेंट। हाँ, दैट लेंथ, इट्स नॉट नेस्ट। हाँ, वो डिपेंड करेगा, बिकॉज वेक्टर फोर्स भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अब लास्ट पार्ट है, डायरेक्शन कैसे बताओगे? बिकॉज विदाउट डायरेक्शन तो कोई मतलब ही नहीं हुआ।
तो वापस हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल देखो, इन द राइट ट्रायंगल ए डी सी, टेल मी व्हाट इज tan phi, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हुआ ना, सी डी बाय ए डी और सी डी बाय ए बी प्लस, तो tan phi से हमें डायरेक्शन पता लग जाएगी। ये बी साइन थीटा, ये ए प्लस, यहां से मैग्नीट्यूड आ गया, यहां से डायरेक्शन आ गई। हाँ, ये 3 मार्क का ही आएगा। कोई बात नहीं, अब क्या करें, तुम भी तो बड़े हो गए, 10th क्लास में नन्हे मुन्ने बालक थे, अब बड़े हो गए। हम्म। हम्म। एक बार पूरा गो थ्रू कर लो उसमें। रिजल्टिंग का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन इससे आएगा, 2 फॉर्मूले तुम्हें याद करना है। हाँ, जब भी दो वेक्टर, नहीं नहीं, वो तो जो अलग से मैंने बताया वो तो कहीं भी काम आएगा, वो अलग चीज था, ये डेरिवेशन है 3 मार्क का, पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट, और फिर ये पूरा डेराइव करना 3 मार्क का आएगा। न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ ये और ये फॉर्मूला काम आएगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट और उनका डायरेक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा, लिखो। टू फोर्सेस, ये तो पढ़ लिया ना, याद कर लेना आज। टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन are acting at a point such that angle between them is, first part 0 degree, angle between them is, first part 0 degree, second part 60 degree, third part 90, fourth part 120 degree, and the last part 180 degree, 180, 180 last. Find magnitude and direction of the resultant. Find magnitude and direction of the resulting force. तो तुम ए को 12 ले लो, बी को 5 ले लो,
थीटा तुम्हें दे रखा है हर केस में, कर लो सॉल्व। थीटा इज द एंगल, ठीक है। तो तुम्हें सी निकालना है और फाई निकालना है, tan फाई निकालना है। हाँ हाँ, 12 लिखोगे ना, जैसे कि ए, मान लिया हमने, ए हो गया 12 न्यूटन, बी हो गया 5 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट में थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकाल लो, ए प्लस बी का मॉड, यूजिंग द फॉर्मूला A² 12² 5² 2 × 12 × 5 cos 0 कितना होता है 1। तो 144 + 25, ये आ गया 17 न्यूटन। तो मतलब पहले वाले में रिजल्टेंट आ गया 17 न्यूटन। डायरेक्शन मतलब पैरेलल हो गया। फाइव tan फाइव 0 आ रहा है, इसका मतलब तो इसका मतलब ये हुआ इट इज अलोंग ए ओनली। तो tan फाइव ये होगा बी विच इज 5 sin 0, 12 + 5 cos 0, 0 ही हो गया। तो इट इज एट 0 डिग्री विद ए। फाइव का मतलब हुआ ना एंगल विद ए। सेकंड पार्ट करो इसी तरह से। सेकंड पार्ट में थीटा 60 डिग्री है।
सेकंड का क्या आंसर आ रहा है सेकंड पार्ट में? सेकंड में 60 हो गया, cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो ये आएगा 169 + 60, 229 कितना किया तुमने कैलकुलेट? ये हो जाएगा 5 sin 60, tan 5 आ जाएगा sin 60 √3/2, 12 + 5/2, 5√3/29, tan 5। नेक्स्ट वाले में ना, ठीक है, बाकी 3 पार्ट घर पे कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका ट्रायंगल लॉ करेंगे और डॉट प्रोडक्ट शुरू कर लेंगे। और नेक्स्ट फ्राइडे, दो नॉट कमिंग फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे तुम्हारा टेस्ट है 1D का, राइट अनन्या? गंगेश एंडिंग द क्लास।